कंसिडरिंग हम लोग मिडिल एजेस की बात कर ही रहे थे, मतलब सो वी एंडेड द एरा सॉर्ट ऑफ डिफरेंट, जो मेजर उसके पॉइंट्स थे वो हमने कवर कर लिए. But there was one aspect that I thought is significant considering the current pandemic as well. So, as we all know that we have had pandemics in the past as well, and the plague is one of those pandemics that was terrible. And I just thought because it happened in the Middle Ages as well, but it would be apt to at least have a discussion about that as well. थोड़ा सा briefly हम इसको भी देख लेते हैं कि वो क्या situation थी उस time. ठीक है, पहली चीज तो ये कि प्लेग उसको हम आज कहते हैं, उस वक्त उसको ब्लैक डेथ कहा जाता था बिकॉज एक तो it was like it created black sort of skin भी आपकी, there were different type of plague, different के बैक्टीरियम की डिफरेंट स्पीशीज से हो रहा था, तो इट कॉज डिफरेंट काइंड ऑफ सिम्टम्स. बट कहीं पर बहुत सारे जैसे बॉडी के अंदर पस्ट्यूल्स बन रहे हैं, जैसे ब्यूबोनिक प्लेग होता था, उसके अंदर बॉडी में बड़े बड़े जो है ना स्वेलिंग हो जाती थी एंड दैट वुड टर्न ब्लैक. In some situations it would turn your skin black completely क्योंकि आपकी बॉडी जो है it starts to rot. So there was a lot of black, मतलब बिल्कुल बॉडी ये हो रही थी while the person was alive. This was also called Black Death. Killed about 50 million people in the 14th century, which is like 60% of entire Europe's population. And as we can see here, this is the affected areas जो भी orange में है. These are all the areas that were affected at that time. And you can see यहाँ France से लेकर there is Italy है, Spain है, Moscow तक ये जा रहा है. All of these areas, including London, Britain, all these areas they were affected by it. मेजर रीजन ये था कि इनका आपस में ट्रेड रूट होता था, तो दे वुड, मतलब ट्रैवल की वजह से ही फैलता था. So initially it arrived in Europe in about 1347. 12 ships from the Black Sea docked at the Sicilian port of Messina. अब ये जो 12 शिप्स थे, यहाँ पर उन्होंने पहला केस देखा, मतलब पहली दफा देखा. इसको जरूरी नहीं है कि ये इससे पहले कहीं और नहीं रहा हो, लेकिन उस शिप के अंदर जो है दे इट वाज फिल्ड विद सेलर्स एंड दे फाउंड दैट व्हेन द शिप मतलब इट रीच्ड द पोर्ट, they saw that most of the sailors were dead by the plague, and those who were alive they were very ill. उनके भी symptoms थे, they were covered in black boils, उसमें से blood pus निकल रहा था, they were very severely ill. उस तरह की condition उन्होंने उस ship पे देखी with all the sailors. तो इससे पहले तक भी there was this whole thing about the great pestilence. ठीक है, like pestilence is like a sort of a disturbance you could say, या एक चीज जो problem create कर रही है. ठीक है, so they had heard about it. ईस्ट की तरफ भी दूर दूर से भी फैला नहीं था, बट बाय द एंड जब वो फैलना शुरू है, फिर इट इवन रीच लाइक चाइना, इंडिया, पर्शिया, सीरिया, इजिप्ट, ऑल ऑफ दीज एरिया. ठीक है, तो इसका मतलब हम जहाँ पर इस वक्त रह रहे हैं यहाँ पर भी ये चीज आ चुकी थी, बिकॉज बिफोर इंडिया जो है तब उस वक्त सारे 1300 में इंडिया पाकिस्तान दे वर ऑल द सेम. तो सब कॉन्टिनेंट जो हम जैसे कह रहे हैं हमारा एशिया का जो एरिया है ये भी अफेक्टेड हुआ था अलॉन्ग विद यूरोप, तो यहाँ तक चीजें आ गई. The pathogen, like they have found that even 3000 BC तक की ये जो पैथोजन है ये मौजूद था, लोगों को अफेक्ट उस वक्त नहीं किया था. वजह इसकी यही है, मतलब किया होगा, वही वाली बात है कि बात ये कि इट स्प्रेड्स थ्रू rat and fleas, and it is like it is a combination of that कि fleas से rats में जाता था, और अगर वही वाले जो infected fleas हैं या infected rats हैं वो अगर human को bite करते हैं तो they would transfer it through bites. That is how it spreads. So Zaira, it's not like a very common occurrence of getting bitten by a rat is not something that happens all the time. Might happen, but then ये कि the rat has to be infected and the bitten person मतलब it has to bite somebody. क्योंकि इसके अंदर जो डेथ है वो इतनी जल्दी हो जाती है कि it could even be within a day. मतलब आप सुबह जो उस वक्त के टाइम के मतलब people who recorded it, they even said कि ऐसा होता था कि सुबह the person looks healthy and by the next morning the person has died and he has developed all these symptoms. So the death
by the Black Plague, it was very quick. 2 दिन 3 दिन में the person would die off. तो infection जो फैलता है वो जितना ज्यादा देर आपके अंदर रहता है उतने चांसेस है, बिकॉज एक तो उसकी एकदम से सिम्टम्स होना शुरू होते, जैसे अब हम आजकल की सिचुएशन में देखते हैं कोविड का मसला ये है कि देयर इज अ लार्ज इंक्यूबेशन पीरियड। 14 दिन तक शायद सिम्टम्स भी पता ना चले, तो यू माइट बी अ कैरियर एंड यू वुडंट नो। तो विद द ब्लैक प्लेग ये था कि इफ यूर अ कैरियर यू वुड नो विद इन मिनट्स एंड आवर्स कि आपके सिम्टम्स हो, तो पीपल कैन अवॉइड यू मोर इजिली ड्यूरिंग दैट टाइम। तो इसलिए इट मे हैव एग्जिस्टेड, इससे पहले भी ये हुआ होगा। अभी तक भी डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट करती है दैट पीपल डू गेट अफेक्टेड बाय इट इन द वर्ल्ड, ऑब्वियसली बिकॉज इट इज अ पैथोजन। लेकिन अब ज़ाहिर ट्रीटमेंट मौजूद है, एंटी वो है एंटीबायोटिक्स मौजूद है, उस वक्त तो पता ही नहीं था कि क्या होता है, बट दिस वाज द टाइम व्हेन इट स्प्रेड फार एंड वाइड। ठीक है, तो सिम्टम्स क्या है? यूजुअली इट कॉजेज स्वेलिंग इन द लिम्फ नोड्स। ये तो लिम्फ नोड में जब स्वेलिंग हो जाती थी इट वुड बी रियली ह्यूज, एंड बॉडी में जहां जहां लिम्फ नोड्स हैं वहां पर आपको स्वेलिंग बाहर तक आती है। अगेन इफ यू लुक एट लाइक सम रिपोर्ट्स उस टाइम पे, तो द ऑथर ही इवन राइट्स के इट इट द स्वेलिंग कुड बी, या जो उनको ग्रोथ नजर आती थी, इट वुड बी एज बिग एज एन एप्पल। एंड अगर छोटा होता था तो इट वुड बी लाइक अ स्मॉल बॉल साइज कुछ होता था। दे वुड, दैट इज हाउ ह्यूज दोज स्वेलिंग्स वुड बी। एंड उसके साथ फिर फीवर है, चिल्स है, वॉमिटिंग, डायरिया, body pain, and then eventually death. And death was certain. It was very quick. It was very fast. Didn't have any antibiotics. ठीक है, bubonic plague, it attacks the lymphatic system. Infection can also spread to the blood or lungs. तो जब blood या lungs की तरफ जा रहा है, which is when जब blood की तरफ infection जा रहा है, तो फिर you can see that जो skin color है वो change होना शुरू हो जाता है, black होना शुरू हो जाता है, because पैथोजन ब्लड के अंदर है, इन्फेक्शन ब्लड के अंदर है, लंग्स में होने की वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होके आपके लंग्स भी डैमेज होना शुरू हो जाता है, विच इज व्हाई पीपल इवन स्टार्ट कफिंग ब्लड, या उस प्लस बस इस तरह की चीजें आना शुरू होती हैं। दूसरी चीज उसमें मसला ये थी कि इट अफेक्टेड काउज, शीप, गोट्स, पिग, चिकन एंड पीपल। तो आपका जो कैटल है बेसिकली, जो जो फार्मर्स खासतौर पे होते हैं, there's an easy spread for them. Once it spreads, then it is going to continue to spread. And it was so bad that यूरोप में वूल शॉर्टेज हो गया था, जो शीप, क्योंकि शीप इतने मर गए थे उससे कि उनको वूल मिलना बंद हो गया था। दैट वाज हाउ बैड इट वाज। ठीक है ना, एट दैट टाइम इट वाज अ मिस्ट्री कि ये क्या चीज है, क्यों हो रही है, किसी को नहीं पता था। स्प्रेड कैसे हो रही है, कैसे बचा जाए, नो बडी न्यू। ठीक है, तो लाइक वन डॉक्टर exclaims कि instantaneous death occurs when the aerial spirit escaping from the eyes of the sick man strikes the healthy person standing near and looking at the sick. So this is like वो कह रहे हैं कि उसके स्पिरिट से ही अगर कोई किसी को मरता हुआ देख ले तो उसको हो जाता है, ठीक, बिकॉज दे हैड नो आइडिया दैट इट वाज बीइंग स्प्रेड थ्रू कांटेक्ट या क्या है। इट वाज सो कंटेजियस। ठीक है, एंड बिकॉज दे हैड नो आइडिया, तो ट्रीटमेंट्स दे वुड जस्ट ट्राई आउट डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। इट वाज वेरी अनसोफिस्टिकेटेड, इट वाज वेरी क्रूड। ब्लड लेटिंग करते थे पहले। व्हाट दे वुड डू इज लीचेस, वो आपकी बॉडी के ऊपर लगा देते थे। आई एम श्योर, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ इट कि उससे वो दे बिलीव कि द लीच इट वुड सक आउट द डर्टी ब्लड, बैड ब्लड, और वो उसको ठीक कर सकता है। तो ब्लड लेटिंग वाज समथिंग जो कि पहले करते थे। एंड बॉयल लैंसिंग, तो बॉयल उस पस्ट्यूल को हम कह रहे हैं, जो बॉडी के ऊपर होती थी, एंड दे वुड लैंस इट, मतलब उसको कट करके निकालते थे उसमें से चीजें। बट अगेन like the problem is the infection is in the blood, it is in the pus, and जब आप इस तरह की जाहिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस यूज कर रहे हैं जहां पर आप उसको एक्सपोज कर रहे हो, so it was unhygienic and that would even spread it more. There were even superstitious practices such as burning aromatic herbs, bathing in rose water or vinegar, इस तरह की चीजें भी होती थी, because they believed कि शायद कोई evil spirit की वजह से होता है। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग अपनी उस वक्त इस तरह से स्टार्ट कर दी थी, पीपल पैनिक्ड, बिकॉज वही बात है कि इट लुक टेरेबल, इट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ देम, इट वाज किलिंग मेनी पीपल एट वन टाइम। एंड हेल्दी पीपल दे जस्ट अवॉइडेड द सिक। डॉक्टर्स ने पेशेंट्स को देखना बंद कर दिया। प्रीस्ट ने कहा कि हम लास्ट राइट या जो भी है रिचुअल होता है डेड के साथ हम नहीं करेंगे। शॉपकीपर्स ने दुकानें बंद कर दी। पीपल दे फ्लेड द सिटीज कि हम अपने जैसे चले जाएं, कि अपनी कंट्री साइड पे चले जाएं, मेजर अर्बन एरियाज में हम नहीं रहेंगे। तो पीपल दे इवन दे अबैंडन देयर सिक एंड dying loved ones because it was so contagious and they were so scared that they would also contract it.
तो एट दैट टाइम जब इनकी जैसे बिकॉज वही बात है कि दिस इज हाई दैट वाज द प्लेग वाज हाईली कंटेजियस जो कि डेड बॉडीज से भी फैल सकता था एंड देयर वर सो मेनी दैट दे वर जस्ट लीविंग द डेड बॉडीज आउट वन विद द अदर ताकि एक ही जगह पर रहे और वही बात थी कि बिकॉज देयर वाज नो प्रॉपर बेरियल नहीं था कोई प्रॉपर उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर पा रहे थे दैट वाज जस्ट एडिंग टू द प्रॉब्लम 5 साल तक उनकी ये सिचुएशन रही so they also believed that the black plague was God's punishment. तो उनको लगा था कि this is क्योंकि यहाँ पर जितनी भी sins हो रहे हैं, fornication है और blasphemy हो रही है उसकी वजह से है. And this was the time जैसे हमने Middle Ages में कहा था कि जो Christianity है it was coming to the peak. ठीक है, and this was one of the reasons that you know मतलब it kind of because Christianity सब लोग बहुत उसको high regard पे रख रहे थे and church ने काफी चीजों पे hold किया हुआ भी था. So they even said that ये जो जो लोग अभी हमारी टीचिंग्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं ना दिस इज बिकॉज ऑफ देम ये लोग हैं एंड अल्टीमेटली इट आल्सो लेड टू द यू नो मैसेकर ऑफ Jews बिकॉज वही वाली बात कि उनको लगा कि इफ वी गेट रिड ऑफ देम तो फिर शायद हमें कुछ वो मिल जाएगा गॉड की तरफ से रिलीफ मिलेगा. There were also flagellants and what they did was they would मतलब अपने आप को जो है ना वो whip करते थे. ठीक है तो they would like gather social किसी जगह पर in the middle people would watch them and they would just whip themselves continuously. This was like sort of penance है. Christianity में भी ये concept है where like sins को purge out करने के लिए some people they believe that you know you should just hit yourself या आप अपने आप को whip करें so that जितना भी वो होगा that is the penance for your as a punishment आप करते हो अपने sins के लिए. So they would do that with heavy leather straps and उसके ऊपर metal के pieces होते थे just ठीक है और उससे अपने आप को करते थे and people would watch them 33 and a half days तक. They continue to do this 3 times a day and then they would move on to another area and do it there. So this was their effort and their attempt to get rid or to you know like ask for forgiveness कि शायद इससे हम बच जाएं. How did it end? It didn't end exactly. मतलब कम हो गया था बहुत हद तक because what they started doing was कि जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे थे उस वक्त ज़ाहिर ट्रैवल वाज मोस्टली बाय सी जो मेजर ट्रैवल होता था बाय रोड भी होता तो था लेकिन एक जगह से बिल्कुल अगर दूसरी जगह तक उसको पहुंचाना होता था तो सी रूट द वाज द वन रिस्पॉन्सिबल तो दे वुड होल्ड द शिप्स. शुरू में 30 डेज तक रखते थे उसको लाइक अ ट्रेंटिनो इज लाइक अ सेट ऑफ 30 डेज एंड देन दे एक्सटेंडेड इट टू 40 डेज कि 40 डेज तक वो उन शिप्स को होल्ड करके रखते थे एंड दैट 40 डेज पीरियड इज कॉल्ड अ क्वारंटीन which is now what we call you know isolating people. जब हम अब ये जो वर्ड मॉडर्न वर्ड है क्वारंटीन इट कम्स फ्रॉम दैट टाइम द ब्लैक प्लेग के दौरान उन्होंने शिप्स को 40 दिन तक होल्ड किया था लोगों को कि सेलर्स बाहर ना निकले तो 40 डेज का वो पीरियड गुजारने के बाद ठीक होते तो फिर उनको आने देते थे just to ensure कि वो मजीद फैले नहीं. इस तरह से by creating the social distancing they were able to decrease the amount to a large number. लेकिन जाहिर है and दूसरी चीज जैसे I said multiple reasons थे the infection spread very quickly and incubation period इतना नहीं होता था तो it was easier to isolate the people who were suffering. ठीक है so this was about the black death the plague that haunted the Middle Ages and we can see that there are a lot of elements to it that हमारी अभी की जो situation है it is quite different obviously alhamdulillah thankfully it's not like that and that was also something that was bacterial so we know that अब अगर किसी को होता भी है तो there are treatments available for it लेकिन I think I would just want you to maybe like give a little feedback on what you think the um, issue is okay कि क्या मतलब किस तरह से उन उसमें और हमारी आज की सिचुएशन में क्या सिमिलैरिटी लाइक इफ यू पुट योरसेल्फ इन दैट प्लेस उस टाइम पे इन द 1300s मिड 1300s एंड यू फील कि अभी इस तरह की एक चीज आई है एंड नोबडी नोज व्हाट इज हैपनिंग कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है उसकी व्हाट वुड यू थिंक इट इज.
See, someone. Ma'am, can you please repeat the question? My question is that what do you think if you lived in a time like that, जहाँ पर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है and there is no scientific explanation for it, you don't know what is happening, but people are dying. आप किसी infectious person के पास भी चले जाते हो and you are at risk of getting it. So what would you think? What would be going on through your mind? कि ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? मैम अगर सर्वाइव ही नहीं कर पाते। सर्वाइव नहीं कर पाते या सर्वाइविंग ही कर पाते आप कह आई मीन सर्वाइव नहीं कर पाते। आई मीन रहे हो? लेकिन मेंटली हम्म, इतने ज्यादा टॉर्चर्ड होते कि मुश्किल हो जाता। ठीक है, बट अगेन आप उसकी एक्सप्लेनेशन क्या सोचते कि क्या हो रहा है? उसकी एक्सप्लेनेशन क्या देते हैं आप अपने आप को या एक दूसरे को? या अगर हम इसको इस तरह से देखें तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या सिमिलैरिटीज हैं बिटवीन द रिएक्शंस टू ब्लैक डेथ एंड द रिएक्शंस टू कोविड? पैनिक। ओके, यस, पैनिक है। व्हाट एल्स? जैसा बोलना कि अल्लाह का अजाब है, इस तरह। हम्म, सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग इज सोशल लाइक द डिस्टेंसिंग। हम्म, अभी भी अगर आप देखें तो द फर्स्ट थिंग दैट पीपल हैव डन इज लाइक स्टार्ट ब्लेमिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल कि ये जो है ये इस ग्रुप की वजह से हो रहा है। कुछ लोगों ने चाइनीज को टारगेट किया, कुछ लोगों ने क्या कहते हैं शिया को कहा, कुछ लोगों ने जायरीन को कहा, मतलब हर तरह से आपको बस एक ब्लेमिंग पार्टी चाहिए थी। यू जस्ट ब्लेम्ड देम कि मैम इन्होंने कहा। स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हुआ था कोरोना वायरस तो उसमें भी अनसस्पेक्टेड डेथ्स थी। कुछ लोग बोलते थे ये डेथ इस वजह से हुई, कुछ लोग बोलते थे कि ये पार्ट डैमेज हुआ तब डेथ हुई। तो ब्लैक डेथ में भी यही हुआ होगा कि लोगों को डेथ का रीजन एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा होगा। जैसे मैम बहुत सारे लोग चाइनीज लोगों को भी जैसे ब्लेम करते हैं कि मतलब उनकी वजह से है और ये वो। मैम कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि ये सब बेवकूफ बना रहे, गवर्नमेंट की साजिश है, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, आई एम सॉरी, आई लॉस्ट कनेक्शन। फरीहा, आप बात कर रही थी, मैंने सुना नहीं आपने क्या कहा। मैम मैं कह रही थी कि जब जो कोरोना में जो इनिशियल डेथ्स हुई और जिस डिजीज की आप 300 में बात कर रही हैं उसकी जो इनिशियल डेथ्स हुई, तो उन दोनों में ये कॉमन था कि लोगों को इसका रीजन बिहाइंड इट नहीं पता था कि एक्चुअल डैमेज किस चीज से हो रहा है। सिम्टम्स वर देयर लेकिन उन लोगों को एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ नहीं पता था दोनों में। हम्म, हम्म, ठीक है, वही। एंड अभी तो फिर भी मतलब वी हैव एन ऑप्शन कि विद टाइम हमें पता चल गया, लेकिन उस वक्त ये ऑप्शन नहीं था। ठीक है, तो जो हमारा इनिशियल मतलब कि क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, पीपल आर डाइंग एंड यू कैन रिलेट कि जितना पैनिक अभी विद ऑल द रिसोर्सेज, विद द नॉलेज, विद द साइंटिफिक व्हाटएवर डेवलपमेंट्स वी हैव, इवन देन लोगों में पैनिक है। एंड दैट वाज द सिचुएशन जहाँ पर कुछ भी नहीं था। दे हैड नो आइडिया व्हाट वाज गोइंग ऑन, and they were just trying to hold on to explanations that made sense to them. So this was again just part of another an important, very important part of what happened to the Europeans. It changed.
a lot of things for them. बहुत सारी चीज़ों में ज़ाहिर है जब population ही आपकी 1/3 of the population is gone, तो फिर मतलब you have to rebuild the economy, you have to rebuild everything else, the trauma that the people have to go through. So it changed a lot of things for people in those areas, but it also gives us a lesson हमारे लिए भी कि there are things like this happening that have happened in the past, and we can also uh, at least like not focus on the panic and just try to वही वाली बात जैसे अभी भी हमने डिस्कस किया था इससे पहले कि just try to go through this because we are in a much better position than this is it for today. um, यहाँ पर हम अपना आज का एंड कर देते हैं. अटेंडेंस आप लोगों की मैं ले चुकी हूँ. um, बाकी असाइनमेंट्स आई होप आई एम गोइंग टू गेट योर असाइनमेंट्स. जितने लोगों का जो इशू हो रहा है असाइनमेंट में मैंने बता दिया था. बाकी सबके मेरे पास मुझे मिल गई हैं. ठीक है. मैम हाँ जी. मैंने अपना रीसबमिट किया है क्योंकि वो मैंने पहले ना अपना नाम और वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना भूल गई थी, तो मैंने रीसबमिट कर दिया है वो पहले वाले हाँ को दैट्स हटा. फाइन. अगर अभी भी मैं बाकियों से कह रही हूँ आपके असाइनमेंट में आपका नाम या रजिस्ट्रेशन अगर नाम नहीं है तो ओके, रजिस्ट्रेशन नंबर होना जरूरी है और वो एंड में आप लिखेंगे, स्टार्ट में नहीं. खासतौर पे अगर आप नाम लिख मैंने रहे हैं तो वो हेडर एंड बना. में लिखें. ठीक है, लेकिन वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, नाम तो नहीं है. नाम मुझे आपका फ्रंट पेज पे मैम दिख जाएगा. मैंने बिल्कुल स्टार्ट पे लिख दिया है, तो क्या मैं रीसबमिट करूँ आपको? हाँ रीसबमिट करें क्योंकि मैंने स्पेशली इंस्ट्रक्शन में आपको लिख के दिया है उसके अंदर कि आपका नाम जो है वो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट में होगा. रजिस्ट्रेशन नंबर है तो ठीक है. आई डोंट वांट एनी मैम आइडेंटिफाइंग मैंने भी इंफॉर्मेशन ऑन द फ्रंट पेज. टाइटल पेज बनाया था। मैम मैंने जितने बस लोगों ने हेडर किया है नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया. नहीं, अगर जितने लोगों का फ्रंट पेज पे नाम है उसको आप निकाल के लास्ट पेज पे करना. resubmit your assignments. नाम अपना लास्ट पेज पे करें because I don't want to grade your assignments based on the impressions I have of you. I want to grade it becoming unbiased. The only way to do that is not knowing किसका assignment कौन सा है. ठीक है, तो अपना नाम आप हटा दें. नाम अपना बैक पे रखिए. रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपने सिर्फ लिखा हुआ है दैट्स फाइन. आई डोंट नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर्स. फ्रंट पेज पे किसी का नाम नहीं होना चाहिए. एक्सक्यूज मी मैम, मैंने हम्म, डॉक्यूमेंट्स के एंड में लिखा है नाम, लेकिन मैंने सेपरेट कोई पेज नहीं बनाया उसके लिए, बस एंड में उससे जहाँ फर्क नहीं पर. पड़ता. उससे फर्क नहीं पड़ता. ओके, दैट्स ओके, थैंक ठीक है. सो अभी भी सबमिशन में किसी का इशू है जो भी है वी हैव टिल टुडे, जस्ट लेट मी नो जो भी आपकी चीज हो. एंड आई होप थिंक और कोई चीज नहीं थी. मैंने बता तो दिया था जिन जिनका मुझे नहीं रिसीव हुआ था. आप लोग देख लीजिएगा. ठीक है. सो आई एम जस्ट एंडिंग इट नाउ.